Mohan Ram has accepted. Mohan Ram has accepted the following bills drawn by Suman Nath. 8th March कितना है? 4,000 for 4 months. 7th April 6,000 for 5 months. 17th March 5,000 for 3 months. 17th May 5,000 for 3 months. He wants to pay all the bills on a single day. That day will be what? Average due date. Now suppose you are Mohan Ram. You are what? When you pay money by average due date, it means you are paying on time. Mohan Ram has to pay money to Suman Nath. If Mohan Ram pays the money on the average due date, then nobody will ask him for interest. If he pays after due date, then interest will be charged from which date to which date? Average due date to the date of payment. And if he pays before due date, then he should earn interest or not? उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना एक्चुअली, बिफोर डेट रहता है, ऐसा है ना, हिसाब से दो. एवरेज ड्यू डेट कुछ नहीं होता है ना. फाइंड आउट दिस डेट. ठीक है, फाइंड करेंगे एवरेज ड्यू डेट. इंटरेस्ट इज चार्ज एट 18%. एंड मोहन राम वांट्स टू सेव 150 बाय वे ऑफ इंटरेस्ट. मतलब he should pay early or he should pay late? Jaldi, jaldi, jaldi. Find out the date on which he has to effect the payment and save interest of rupees 150. अब सुनो बच्चों, सुनने के साथ तुम लोगों को चारा क्या है? कुछ नहीं. सुनो सुनो सुनो, कहानी मत सुनो, प्रॉब्लम सुनो. चलो बनाओ, क्या है वही कहानी अपनी. डेट ऑफ बिल, फिर पीरियड इन मंथ्स, और क्या है? ड्यू डेट, देन अमाउंट, फिर क्या क्या बताओ? कैलकुलेशन ऑफ डेज, देन और क्या है करे? आओ लिखें डेट ऑफ बिल. क्या डेट ऑफ बिल? नो, इट इज मार्च ओनली. मार्च मार्च मार्च. 8/3/84. पीरियड इज 4 months. कहां पहुंचेगा 4 months? कहां पहुंचेगा? 11/7/84. अमाउंट इज 4,000. Then comes what? 7th 4/84. It is how many months? 5 months. फिर 10/9/84. How much? 6,000. Then 16/3/84. How many months? तो 19/6/84. How much? 5,000. Then 17/5/84. How many months? 3 months. How much rupees? 5,000. I hope you have followed this today. Calculation of days.
नाउ व्हाट इज द जीरो डेट? जीरो डेट आप कौन सा लोगे? विच इज द अर्लीस्ट डेट? 19/6/84 चलेगा ना? जीरो डेट, हाँ, ओके. और दिस इज जीरो डेट, ओके. नाउ काउंट फ्रॉम 19 जून टू 11/7. 19 जून मतलब जून में कितने दिन बाकी है? 11. और जुलाई के 11, टोटल हो गए कितने? 22, ओके. देन 19 जून टू 10th September. June is 11. Then no, this is what is the date? How 20th August? First we'll take this, no? ये बाकी है ना? ये जीरो है ना? यहाँ से ही जानने का है. 11 is of June, then July is 31, August 31 प्लस क्या? 10. कितना होता है? 82 और 83. 83, no, it is 83. Then this is 0. Then here 11 July, June. Then July is 31 plus 20. How much it is? 62 is the correct answer. This is 0. Getting this? तो इसमें क्या था? कुछ थोड़ा गड़बड़ था, ऐसा फॉर्मेट चेंज कर दिया. लेकिन वी कैन टेक एनीथिंग एज जीरो डेटा. बट सी यार, बता दो सुनो. अगर है ना, मैं यहाँ पे 11th जुलाई को जीरो डेट लूँ, क्या लूँ? तो फिर 11 जुलाई टू 10th सितंबर कुछ आंसर आएगा. पर 11th जुलाई टू 19th जून वो बैकवर्ड हो गया कि नहीं? तो वो नेगेटिव आंसर आएगा. तो भी आंसर सेम आएगा, फाइनल आंसर एवरेज वेट सेम आएगा. बट फिर नेगेटिव मान के चलने का. प्रोडक्ट क्या है? देन 0. देन ओके. इक्वेटेड पीरियड, नो फॉर्मूला, डायरेक्टली आंसर. हाँ, 8,96,000 divided by that is how much? 44.8 days. So that is average due date is plus how many days? 45 days. That is जून में कितना गया? 11. जुलाई में 31. तो कितना हो गया? प्लस 3 दिन बचा ना? थर्ड. तो एवरेज ड्यू डेट इज okay. Then what you will do after this? Now listen here. If क्या नाम है डेटर का भाई? मोहन राम. If Mohan Ram pays on 3rd August rupees 20,000, then no interest will be charged. If Mohan Ram pays after 3rd August, then he will have to pay interest for the period from 3rd August till the date of payment. पक्का? हाँ कि नहीं? पर if
मोहन राम wants to earn या सेव इंटरेस्ट, है कि नहीं? he should pay before 3rd August. Okay, now see here, interest is equal to 20,000 into 18 divided by 100 into number of days डिवाइड बाय 366 करो। क्यों मालूम है? 360 डेज, 366 डेज, क्योंकि कौन सा साल है ये? लीप ईयर है ना। अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते तो लीप ईयर नहीं है, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 83 84 विल बी लीप ईयर, तो हम लोग लीप ईयर लेते, 366 लेते। ओके, ना इंटरेस्ट कितना चाहिए इसको? नहीं नहीं, अमाउंट कितना चाहिए इसको? 150 इज इक्वल टू क्या? 20,000 इंटू 18 डिवाइड बाय 100 इंटू डेज डिवाइड बाय 366, है ना? तो बच्चों डेज क्या होगा? डेज विल बी इक्वल टू 150 इंटू 366 इंटू 100, whole thing divided by what? 20,000 इंटू 18 ना, नीचे कि नहीं? अरे कैलकुलेशन करो बच्चों, कितना आएगा? 150 इंटू 366 इंटू 100 डिवाइड बाय 20,000 डिवाइड बाय 18, कितना आता है? 15 पॉइंट, that is 15 days. तो when he should pay, tell me? पीरियड क्या होगा? 18th नहीं, 3rd अगस्त माइनस क्या? माइनस व्हाट? 3rd अगस्त माइनस 15 डेज, क्या आएगा? 18th क्या? 18th जुलाई। It should be which date? 19th July, huh? It is 3rd August minus 15 days and not 18th July as done earlier. 19th July, that is 12th July, 12 days in July and 3 days in August. So if he wants to save interest of rupees 150, he should pay when? On 19th July.